Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hope you guys are doing well. So let's start our topic today. In the previous topic, we discussed about um, basic laws of electrical circuits. That could be Ohm's law, KVL, and KCL, Kirchhoff's current law, and the Kirchhoff's voltage law. Last lecture में we discussed about basic laws. Ohm's law that says that the voltage across any closed loop is directly proportional to the current flowing through the circuit. So we can say it as V is equals to IR. And next two laws that we discussed already were Kirchhoff's current law. We called it as the KCL, and Kirchhoff's voltage law, which is stated as Kirchhoff's voltage law, it can be stated as KVL. ठीक है? So दोनों laws क्या state कर रहे थे? The KCL currents, Kirchhoff's current law states that sum of the current across any closed loop is equals to 0. Our current entering through the loop must be equals to the current leaving through the node. ठीक है? Sorry, it was current entering through the node must be equals to the current leaving through that node. And the Kirchhoff's voltage law states that sum of the voltages across any closed path must be equals to 0. So mathematically, they can be written as summation of Vn is equals to 0 for the KVL, and for the KCL, summation of all the current must be equals to 0. Okay? So we should see certain examples about it. But first, we will discuss about the series circuits and the parallel circuits today, and then we will move towards in the related जो भी हमारी examples है, we have to solve them out. So the circuits can be a combination. Circuit can be a simple series circuit. The circuit can be a parallel circuit, or it can be a combination of the series and parallel circuit. So what is a series circuit? Two or more circuit elements are said to be in series if the current from one element exclusively flows into the next elements. So we can say that all series elements have the same current. So in a series circuit, the current remains same and the circuit elements are said to be in series. अगर एक में से जो current flow कर रहा है वो वहां से ही हमारे पास next element में जो वो current flow करना शुरू कर दे. Like we can say we have the four resistance R1, R2, R3 and R4 और ये सारे के सारे elements are connected in series because R1 में से जो current flow कर रहा है वो यहाँ से एग्जिट करके R2 में जाएगा, R2 से R3 में जाएगा, R3 से R4 में जाएगा. सीरीज का एक और भी है, जैसे कोई भी चीज सीरीज में कनेक्टेड होती है तो फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो किसी भी चेन को सीरीज में कनेक्ट करना है, कोई पेंसिल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है या किसी भी चीज को सर्किट एलिमेंट्स को कनेक्ट करना है तो उनका एक एंड पॉइंट कॉमन होगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है R1 और R2 का एक एंड पॉइंट कॉमन है, R2 और R3 के दरम्यान में भी एक कॉमन पॉइंट है और R3 और R4 के दरम्यान में भी एक कॉमन पॉइंट है. कीप इट इन माइंड, सीरीज सर्किट में हमेशा करंट जो है वो सेम होता है. तो हमारे पास जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी वो हमारे पास कैसे आएगी सीरीज सर्किट में, बिकॉज द करंट रिमेन सेम सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी सम ऑफ द individual resistances. So we can say that the R equivalent is equals to summation n starts from 1 to n. For example, अगर हमारे पास n number of resistance है तो it would be equals to R1 plus R2 plus R3 plus up to Rn तक जो है वो हमारे पास जितने भी resistors होंगे सारे के सारे को हमने क्या करना होगा, simply add up कर देना. तो that circuit would form a series circuit. However, एक बात और आपने माइंड में रखनी है, इन अ सीरीज सर्किट द करंट रिमेन्स सेम व्हाइल द वोल्टेजेस डिवाइड, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन के हमारे पास हर रेजिस्टर डिफरेंट है. सो हर रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डिपेंडिंग ऑन के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल है. यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, R1, R2 एंड R3. वोल्टेज अप्लाइड हमारे पास क्या है, V है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास क्या है, I है. सो हमने क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बाय द सोर्स. हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि सर्किट सीरीज है तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का क्या होगा, सम होगा. हमने करंट I को फाइंड करना है. कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड बाय ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर के क्रॉस पावर डेसिपेशन क्या है, आउटपुट पावर जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आ रही है. ठीक हो गया. तो यहाँ से हम देखें हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स गिवन है उसकी वैल्यू है 24 वोल्ट. R1 की वैल्यू हमारे पास है 1 ओम. ठीक है, इसको यहाँ पे हम ले जाते हैं.
R2 हमारे पास 3 ओम है और R3 हमारे पास क्या है 4 ओम है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेनी है। सो वी कैन नोट बिकॉज द सर्किट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इट शुड बी R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस बन रही है। आई हमें पता है बिकॉज द सीरीज सर्किट है तो करंट रिमेन सेम, सो इट शुड बी V बाय R इक्विवेलेंट। इन सब का इक्विवेलेंट, अब देखिए तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में थे तो हमने सीरीज में इनको ऐड अप करके उनको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया जो कि हमारे पास R इक्विवेलेंट है। अब हमारे पास टोटल सर्किट क्या बन रहा है, एक सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट और करंट है I है। अब V की भी वैल्यू नोन है, R की भी नोन है, ओम से अप्लाई करके हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट शुड बी V by R इक्विवेलेंट, सो शुड बी 24/8, दैट शुड बी इक्वल्स टू 3 एम्पीयर। अब हमने क्या करना है, हमें ईच रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करनी है बिकॉज वी नो दैट पैरेलल के केस में, सीरीज के केस में वोल्टेज ड्रॉप हर रेजिस्टर के क्रॉस डिफरेंट होगी। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 शुड बी इक्वल्स टू I तो क्योंकि कांस्टेंट है, सेम है थ्रू आउट द सर्किट, सो इसकी वैल्यू क्या होगी R1 की इक्वल। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 2, इसको हम V2 कह रहे हैं, इट वुड बी इक्वल्स टू I into R2 और V3 हमारे पास किसकी इक्वल होगा I into R3। सो I तो सेम है, हर रेजिस्टर की वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब यहाँ पे आप ये देखें, जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही ज्यादा वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। अब टोटल वोल्टेज हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू, इन तीनों का अगर हम सम करें तो हमारे पास 24 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास KVL जो सेटिस्फाई हो रहा है, दैट सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ से क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर डेसिपेशन। सो अक्रॉस रेजिस्टर R1 P इज इक्वल्स टू, इसके क्रॉस जो पावर ड्रॉप क्या होगा, P1 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R1। ठीक है, तो I सेम है, R1 की वैल्यू निकाल के हम जो हर रेजिस्टर के क्रॉस की पावर डेसिपेशन निकाल सकते हैं। P2 क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R2। तो हमारे पास हर रेजिस्टर के क्रॉस, क्योंकि रेजिस्टर 9 वाट पावर डिसिपेट कर रहा है, क्योंकि 27 वाट, और ये क्या कर रहा है 36 वाट जो पावर डिसिपेट कर रहा है। और उसने लास्ट स्लाइड में हमें ये कहा, लास्ट पार्ट में हमें ये कहा हुआ था कि तो आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो वी कैन से दैट आउट टोटल पावर हमारे पास क्या होगा, I into V। टोटल करंट हमारे पास है, टोटल वोल्टेज भी है, तो ये 72 वाट जो है वो हमारे पास टोटल पावर है। उनमें से जो रेजिस्टर 1 है वो 9 वाट कंज्यूम कर रहा है, रेजिस्टर 2 27 वाट और रेजिस्टर 3 क्या कर रहा है 36 वाट। अगर हम इन तीनों को सम अप करें तो वो हमारे पास क्या होगा 72 वोल्ट, 72 watt की को रहेगा। Sorry, this is not volt, this is watt. The total power dissipated by the resistor is same as the power output by the source। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पावर जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, इसी तरह से सीरीज सर्किट के पास बाद हमारे पास आते हैं पैरेलल सर्किट्स। तो पैरेलल सर्किट्स आर सेड टू बी, elements are said to be in parallel if the elements share the same terminal। अगर ये resistors हैं, अगर ये same terminal share कर रहे हैं, मतलब इनके दोनों points common है, दोनों end points common है, तो that circuits are said to be parallel circuits। Keep it in mind, parallel circuits have the same voltage as that of a source voltage। कि यहाँ पे R1, R2, R3 and R4 पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि इनके दोनों के दोनों जो है वो टर्मिनल्स क्या है, कॉमन है। R1 का ये वाला टर्मिनल भी इन सब रेजिस्टर का कॉमन है और ये वाला टर्मिनल भी क्या है, कॉमन है। सो दे आर सेड टू बी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल सर्किट में हमेशा वोल्टेज सेम होगा। कीप इट इन माइंड, सीरीज के केस में करंट सेम होता है, पैरेलल के केस में बस वोल्टेज सेम होती है। यहाँ से अगर हम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। हम यहाँ से ये कह सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय, ये हमारे पास उसकी फॉर्म में आ जाएगा, रेसिप्रोकल की फॉर्म में। ठीक हो गया यहाँ से। और we can say that where V1 is equals to V2 is equals to V3 is equals to V4, सारे के सारे वोल्टेजेस हमारे पास क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। सो ये हमारे पास कुछ पैरेलल सर्किट्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे A एंड B, देखिए इनका ये पॉइंट भी हमारे पास A और B को कॉमन है और ये वाला पॉइंट भी कॉमन है, ABCD। इस तरह से भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये वाला भी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये वाला भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, अगर उनके एंड पॉइंट्स दोनों के दोनों टर्मिनल्स कॉमन है तो दे फॉर्म द पैरेलल सर्किट्स। अच्छा, इस तरह से इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल 2.2, जिसमें हमारे पास रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 कनेक्टेड है। आप देख लें यहाँ से ये तीनों के तीनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। सोर्स सप्लाई हमारे पास V है,
अब क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है तो R1 के क्रॉस जो करंट होगा वो I1 है, R2 के क्रॉस जो करंट है वो I2 है और R3 के क्रॉस जो करंट है वो हमारे पास क्या होगा R3 होगा। पैरेलल को आप ऐसे ले लें जैसे ये 3 के 3 जो है वो हमारे पास वाटर पाइप है और यहाँ से इनपुट जो है वो हमारे पास कोई भी पानी का नल का है। तो हम यहाँ से जब हम जो है वो टैप खोलेंगे, इनपुट पावर को फ्लो कराएंगे, इनपुट वाटर को, तो हमारे पास क्या होगा, कुछ करंट इस कुछ पानी इस पाइप में चला जाएगा, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन के हर पाइप का हमारे पास डाया कितना उसके अकॉर्डिंगली। सो सेम हैपेंस विद द करंट कि हमारे पास करंट जो डिपेंडिंग ऑन ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अगेन गिवन है हमारे पास सोर्स गिवन है V और हमने क्या करना है यहाँ से वैल्यू निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस की, टोटल करंट निकालना है, रेजिस्टर जो करंट डिवाइड हो रहा है उसको निकालना है, पावर डेसिपेशन बाय ईच रेजिस्टर, आउटपुट पावर जो है वो हमने निकालनी है। डाटा हमारे पास जो है वो गिवन है कि R1 R2 और R3 हमारे पास क्या है, 1 ओम 3 ओम एंड 4 ओम और हमारे पास वोल्टेज क्या है 24 वोल्ट गिवन है। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 0.632 ओम यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। उसी तरह से हम इनको इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और आई हमारे पास क्या आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट के V 24 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट 0.632 है। यहाँ से हमारे पास करंट आ जाएगा 37.97 जिसके अप्रोक्सीमेटली हमने 38 एम्पियर ही ले लिया। अब जो है वो करंट हमारे पास आ जाएगा अक्रॉस R1 which we can call it as I1, it should be equals to V/R1, I2 आ जाएगा V/R2 के, I3 का आ जाएगा V/R3 का। V सेम है थ्रू आउट द सर्किट, R1 R2 R3 डिफरेंट है, so उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। सो I1 के क्रॉस 24 एम्पियर, I2 के क्रॉस 8 एम्पियर और I3 के क्रॉस 6 एम्पियर करंट ड्रॉप होगा और इन तीनों का अगर हम सम करें तो ये टोटल करंट के ही इक्वल आएगा, दैट इज 38 एम्पियर। अब कीप इट इन माइंड क्योंकि रेजिस्टेंस एंड करंट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा इसके क्रॉस जो है वो करंट ड्रॉप होगा। जैसे यहाँ पे देखिए R1 इज जस्ट 1 ओम तो उसके क्रॉस 24 एम्पियर करंट ड्रॉप हो रहा है, जबकि I3 हमारे पास 4 एम्पियर है तो उसके क्रॉस करंट जो ड्रॉप क्या है जस्ट 6 एम्पियर। ठीक है। So because this is the sum of the individual current is equals to the current output source, so here it satisfies the KCL। अच्छा, इस तरह से पावर डेसिपेशन अक्रॉस सिस्टम का वही फार्मूला है I स्क्वायर R। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि करंट डिफरेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R1, I2 स्क्वायर इंटू R2 और I3 स्क्वायर इंटू R3। यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर निकाल लेंगे तो हमारे पास ये जो है वो पावर डेसिपेशन है कि अक्रॉस ईच रेजिस्टर। टोटल पावर हमारे पास क्या आ रही है I इंटू V। आई हमारे पास टोटल 38 एम्पियर है, सोर्स हमारे पास 24 वोल्ट है, यहाँ से टोटल पावर हमारे पास 912 वाटेज आ रही है। एंड कीप इट इन माइंड P1 प्लस P2 प्लस P3 should be equals to the total source power, that is 912। So next हमारे पास है series and parallel resistor combinations कि circuit can be connected in series, circuit can be connected in parallel, or they can be connected, they can be a combination of the series and parallel। यहाँ से हम क्या करते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल जो है वो लगा देते हैं। अब हम यहाँ से अभी इस वाली साइड को छोड़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को, अगर हम आगे जाते हैं दैट इज द वोल्टेज डिवाइडर रूल। अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर रूल इज यूज्ड इन डिटरमिनिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर विद इन अ सीरीज सर्किट। सो कीप इट इन माइंड, वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडर रूल VDR इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन द सीरीज सर्किट, क्योंकि सीरीज सर्किट के केस में हमारे पास वोल्टेज डिवाइड होती है तो हमने यहाँ से जो है वो पैरेलल केस में वोल्टेज सेम रहती है। सो वोल्टेज डिवाइडर रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द सीरीज सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर रूल ये कहता है कि हम जो है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस रूल। So Vx is the voltage drop across a particular resistance. It should be equals to Vs total source voltage multiply हम इसको करेंगे Rx से, Rx वो रेजिस्टर जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बिकॉज सर्किट में हमारे पास वोल्टेज है वो सेम, सॉरी सीरीज के केस में हमारे पास रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, सिंपल सब रेजिस्टेंसेस का सम हो जाएंगे। सो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ से Vx से अगर हमने Vx हमारे पास इस टाइप पे V1 हमने फाइंड करना है, सो ये किसकी कुल आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 should be equals to R1 resistance multiplied by source voltage divided by total resistance, which should be R1 plus R2 plus R3। ठीक है। So we can say voltage drop across the measured resistance is Vx, the resistance value of the measured resistor हमारे पास Rx है, R equivalent total resistance और Vs जो है वो सर्किट की अप्लाई वोल्टेज है।
So वोल्टेज डिवाइडर रूल को अप्लाई करके वी कैन डिटरमिन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, ये 60 वोल्ट का एक सोर्स गिवन है, हमारे पास R1 R2 एंड R3 की जो वैल्यूज गिवन है। अब हमें पता है कि सीरीज सर्किट है तो वोल्टेज डिवाइड होगा। अब हमने क्या करना, हमने क्योंकि R2 एंड R3 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, सो वी कैन से द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज V2 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 इज V3। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V2 किसके इक्वल आ जाएगा, Vs सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब Vs हमारे पास गिवन है 60 वोल्ट है, R2 की वैल्यू यहाँ से क्या नजर आ रही है, हमें 20 ओम नजर आ रही है, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तीनों रेजिस्टेंसेस का सम बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो 10 प्लस 20 प्लस 30, यहाँ से हमारे पास V2 भी आ जाएगी, और इसी तरह से वी कैन फाइंड आउट V3। सो दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर रूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, करंट डिवाइडर रूल है। करंट डिवाइडर रूल जो है हमारे पास CDR, इट इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग द करंट फ्लो थ्रू वन ब्रांचेस ऑफ द पैरेलल सर्किट। सो करंट is divided in case of the parallel circuit, सीरीज में तो करंट सेम रहता है, so CDR is always applicable for the parallel circuits। इसमें ये कह रहा है कि हम हर रेजिस्टर के क्रॉस, हर ब्रांच के क्रॉस जो हमारे पास करंट डिवाइड हो रहा है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंगली IX हमारे पास वो करंट है जो कि हमने जिस भी ब्रांच के क्रॉस से जिस रेजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड करना है वो रिस्पेक्टिव है। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, IS टोटल सोर्स करंट, और ये वोल्टेज डिवाइडर के ऑपोजिट है। ठीक है, उसमें RX बाय R इक्विवेलेंट था, ये हमारे पास हो जाएगा R इक्विवेलेंट बाय RX के। So IX is the current flow through any parallel branches. RX is the resistance of the branch to which the current is to be determined. And R equivalent हमारे पास total resistance है, और IS हमारे पास क्या है, applied current है। ठीक है, सो यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास IS सोर्स करंट है, रेजिस्टेंसेस सारे के सारे हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज ड्रॉप तो इनके क्रॉस सेम होगा। सो I1 I2 I3 इज द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अगर हमें यहाँ से I1 निकालना है तो हमने क्या करना होगा, सारे के सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को सिंपली ऐड अप करना है, जो कि हमारे पास कैसे आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। RX would be I1 because हम I1 के क्रॉस करंट फाइंड कर रहे हैं, so it should be R1 multiplied by IS, that should be the total source current। So we can find out branch current in the figure shown below. The circuit is connected in series. So R1 is 3 kilo ohm, R2 is 8 kilo ohm, R3 is 24 kilo ohm, and the applied current is 12 milliampere. So we have to find out IR1, IR2, and IR3. Because all of the resistances are connected in series, so we can find out the equivalent resistance 1/R equivalent, that should be equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. It comes 1/2 kilo ohm because we have to find out the R equivalent, so R equivalent should be 2 kilo ohm, should be the total equivalent resistance. Keep it in mind, the units are different. This time all of the units are in kilo ohms. So next we have to find out IR1, IR2, and IR3. So we have to apply CDR. So it should be I into R equivalent by R1 because we have to find out the current across R1 resistance. So by just putting the values, we can find out the total current across each resistance. That should be 8 milliampere. The current drop across the resistance R2 is 3 milliampere, and current drop across the resistor R3 is 1 milliampere. And we can say that the sum of the current across any node, sum of the current across any node must be equals to 0. We can say the current entering must be equals to the current leaving. So we have to justify this, that by applying these three currents, because 12 milliampere current is entering this node and all three currents I1, I2, and I3 are leaving through this node. So current entering must be equals to the current leaving because we have to satisfy the KCL. So it is justified here. So now we have to see if we have two resistors, two parallel resistors. So R equivalent can be, because of the resistors can be connected in parallel. So it can be R1 into R2 divided by R1 plus R2. This is only applicable for the two resistors. If two resistors are connected in parallel and the current passing through that resistance can be I1 is equals to I into R2 divided by R1 plus R2, and I2 should be equals to I into R1 divided by R1 plus R2. ये हमने इसी में ही करंट डिवाइडर रूल लगा के यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज आ गई। बट कीप इट इन माइंड, ये फॉर्मूला हमारे पास एप्लीकेबल है, बट दिस इज ओनली फॉर द टू पैरेलल रेजिस्टर्स। तो टू पैरेलल रेजिस्टर्स के केस में हम I1 I2 को इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, और R इक्विवेलेंट हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से इनको फाइंड कर सकते हैं। ये हमने सिंपली क्या किया, 1/R1 प्लस 1/R2 करके दोनों का रेसिप्रोकल जो आपके पास डिनोमिनेटर था उसका LCM लिया और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है।
नेक्स्ट आर द मेजरिंग डिवाइसेस दैट वी हैव टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अब जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।